السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیر، میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی کپتان کا کی بورڈ واریئرز کو ٹاسک، آزادی پر دھاوا ناممکن، صوبائی وزیر کو بھتے کی پرچی، آگ سب کے گھر لگے گی، کوئی استثناء سے رہ تو نہیں گیا، زرداری کے کیس واپس، کراچی میں سب بے امان، جمائمہ نے گنگنایا، اور بھارت کو پاکستان کی وارننگ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عوام کو آگاہی دو اور مارچ کے لیے تیار ہو۔ عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایات کر دی، کہا پاکستان کو بیرونی سازش سے سیاسی اور معاشی بحران کی دلدل میں دھکیلا گیا، سیاست کے لبادے میں مجرمان کا گروہ اقتدار پر قابض ہو چکا ہے، یہ لوگ آئین اور جمہوریت پر حملہ آور ہیں، تحریک انصاف سیاست نہیں ریاست کے لیے لانگ مارچ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عوام کا کپتان بھی تیار ہے، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگا۔ کی بورڈ کی جدوجہد تیز کر دو، آزادی کا پیغام ہر فرد تک جانا چاہیے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا چلانے والے اپنے کھلاڑیوں کو ہدایت کر دی۔ مشن وارم اپ میچ کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں شمالی پنجاب کے سوشل میڈیا ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ لانگ مارچ کی تیاریوں اور حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ عمران خان نے اجلاس میں کہا، اقتدار پر قابض افراد سیاستدان نہیں بلکہ مجرم اور مافیاز ہیں، انہیں بیرونی سازش سے مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا، بیرونی سازش کامیاب ہوئی تو عوام بغیر کسی کال کے امپورٹڈ سرکار کے خلاف باہر نکلیں۔ ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا۔ امپورٹڈ سرکار نے عوام کو دبانے کے لیے بدترین فسطائیت کا سہارا لیا، میڈیا میں موجود آزاد اور غیر جانبدار آوازوں کو دبا کر جبر کا سکوت طاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف بھی کی، کہا کی بورڈ فائٹرز نے خوف کا پردہ چاک کیا، کمیونیکیشن کو فسطائیت کے شکنجے سے آزاد کر کے سیاسی شعور میں اضافے کی راہ ہموار کی۔ آزادی کو سلب کرنا اب سیاسی طالع آزماؤں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ عمران خان نے کہا، لانگ مارچ میں بھی سوشل میڈیا کلیدی کردار ادا کرے گا، سیاست یا حکومت کے لیے نہیں، قوم کی حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ کریں گے۔ فوری عام انتخابات تمام بحرانوں سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ جب میں کال دوں گا وہ آخری کال ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں 74 سالہ اعظم سواتی کو گرفتار اور ان پر تشدد کر کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے۔ عمران خان نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کو مختلف علاقوں کے اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری کے خلاف ایوان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے ڈپٹی چیئرمین سے ملاقات میں مطالبہ کر دیا۔ مرزا محمد آفریدی سے ملاقات میں عمران خان نے کہا، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ایوان کی حرمت کی بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ اعظم سواتی کی گرفتاری کے واقعے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ مجرموں پر مشتمل امپورٹڈ سرکار ایوان کا وقار مجروح کر رہی ہے۔ 74 سالہ سینیٹر کی گرفتاری اور اس پہ تشدد سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ لانگ مارچ کے لیے عمران خان کا مشن وارم اپ بھی جاری ہے۔ انہوں نے مری، چکوال، تلا گنج، ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسیرا کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی تنظیمی ذمہ داروں اور ٹکٹ ہولڈرز سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی ٹیم سے لانگ مارچ سے متعلق بات چیت کی اور خصوصی ہدایات بھی جاری کی۔ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر عاطف خان کو 80 لاکھ بھتے کی پرچی مل گئی، انہوں نے خود بھی تصدیق کر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ بھتہ نہیں دیں گے۔ عاطف خان کو واٹس ایپ پر بھی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ وزراء بھی بھتہ خوروں کے نشانے پر آ گئے۔ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر کو کلعدم تنظیم نے 80 لاکھ روپے بھتے کی پرچی بھیج دی، جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ لکھا گیا کہ پیسے دیں ورنہ مرنے کو تیار رہیں۔ عاطف لیٹر آیا ہے رینسم، جس طرح نارملی باقی لوگوں کو بھی کچھ لوگوں کو آئے ہیں،
तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। आतिफ खान को कलअदम तंजीम की जानिब से व्हाट्सएप पर भी धमकी दी गई थी, जिस पर आतिफ खान ने भत्ता देने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी इदारों को इत्तला कर दी। और सवात की बिगड़ती हुई सूरत हाल की कौमी असम्बली में गूंज, वुज़रा अपनी ही हुकूमत से नाला दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ बाजा आसिफ बोले, सवात में लगी आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। खुशी की बात है सवात के लोग इकट्ठे हुए हैं। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जा तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। शहरी रहमान भी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हम इक्तदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए, फिर कलअदम टीटीपी सर उठा रही है। इनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर एतमाद में लिया जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। कि हमें इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज हैं इस मुल्क में जहां पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। इसके लिए भी नहीं आए कि फिर से वो दहशतगर्दी सर उठाए और स्वात से सर उठाए, और अब हमें टीटीपी अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। हैव दे डीमिलिटराइज? हमें दिखाइए, ये शवाहिद दिखाएं। मुल्क हमारा है, इसको हम ही ने बचाना है, तो इस पे कोई लगी लिपटी नहीं हो सकती। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, एतमाद में लेना चाहिए सबको। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि किसी इनफरादी फ़ायदे को मुआशरे के हुकूक के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में भी तवाज़ुन ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम के तहत तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। क्या कोई रह गया है जिसे इस्तिस्ना ना मिला हो? केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के नैब तरमीम पर दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो। तहसील कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि जब तक पहुँचाया गया फायदा गैर कानूनी न हो तो कोई कबाहत नहीं। मखसूस अफसर को गैर कानूनी फायदा पहुँचाने पर कार्रवाई न होना गलत है। किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकारी कंपनी पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता ही है। बज़ाहिर अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि किसी इनफरादी फायदे को माशरे के हुकूक के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। आम शहरी के हुकूक हैं तो दूसरी तरफ कौमी मफाद और माशरे के भी बुनियादी हुकूक हैं। दोनों के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए। अगर दीगर फॉर्म्स पर केसेस जाएं तो क्या होगा, हमें इस पर मामलत दरकार है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीम के जरिए बच निकलने वालों के लिए रास्ता अभी इतना आसान नहीं। नैब ने तरमीम चैलेंज केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया। मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। फहरिस्त में तमाम साबिक सुदूर, वज़ीर आज़म, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के केसेस शामिल किए जाएंगे। नैब ने रीजनल ब्यूरोज से अक्टूबर 2022 तक के तमाम मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली। करप्ट अनासिर के लिए बुरी खबर। नैब तरमीम चैलेंज केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया गया। तमाम मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी गईं। मेगा करप्शन की फहरिस्तों में तमाम साबिक सुदूर, वज़ीर आज़म, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के केसेस शामिल किए जाएंगे। नैब ज़राए के मुताबिक अवाम उन्नास से फ्रॉड के केसेस भी मेगा करप्शन में शामिल किए जाएंगे। नैब ने फहरिस्तों की तैयारी के सिलसिले में तमाम रीजनल ब्यूरोज को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि नैब के क़याम से लेकर अक्टूबर 2022 के तमाम मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात फरहम की जाएं। और दूसरी जानिब नैब की आसिफ जरदारी पर मेहरबानियां। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ कर डाली। नैब ने आसिफ जरदारी की बर्रियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी।
पर नैब की मेहरबानियां, 25 साल पुराने केसेस पर पेशरफ्त, नैब 4 अपीलें वापस लेगी। नैब ने आसिफ अली जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। नैब का मौक़िफ़ है कि दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। पुरसिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड और SSD कोटकना केस में आसिफ जरदारी बरी हुए थे। नैब ने आसिफ जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। आजम सवाती केस में हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरबे अपनाने का सिलसिला जारी है। आजम सवाती की जमानत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल के लिए वक्त मांगने पर अदालत बरहम हो गई। आजम सवाती के वकील का कहना था कि आजम सवाती ने सुबह 7 बजे ट्वीट किया और दिन 1 बजे ही पर्चा कट गया। इंक्वायरी के बगैर आजम सवाती को कैसे गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरबे बदस्तूर जारी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाल देने के लिए तैयारी का वक्त मांगा, जिस पर अदालत बरहम हो गई। जज ने कहा, आप बच्चे नहीं हैं कि आपको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। आजम सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा कि FIR में आजम सवाती के ट्वीट को मुल्क की सालमियत के खिलाफ तस्वुर किया गया है। 7 बजे ट्वीट किया गया और 1 बजे पर्चा कट गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA बगैर इंक्वायरी के कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? एक केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदलिया और पाकिस्तानी इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक ट्वीट से गिर जाएं। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फैसल वावड़ा के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इंहिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए अदालत उज़्मा से मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। इससे कबल इलेक्शन का इनेकाद इंतजामी और अमली तौर पर नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि शहबाज शरीफ मुल्क में सरमायाकारी लाने नवंबर में चीन जाएंगे। मुल्क सैलाब से दोचार है। हुकूमत की कोशिश है कि मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली मुमकिन बनाई जाए। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होगा, और मार्च में नई मर्दमशुमारी आ जाएगी और उस सेंसस के बाद 4 महीने दरकार होंगे इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करने के लिए। इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है इंतजामी तौर पे और अमली तौर पे। नवंबर के अवाइल में वजीर आजम पाकिस्तान का चीन का दौरा मुतवक्के है। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त उन लाखों करोड़ों लोगों की बहाली पर है जो सिंध और बलूचिस्तान में खास तौर पे, इसी तरह जनूबी पंजाब में, जनूबी KP में, चारसदा में, सवा कलाम में और कोहिस्तान में बारिश की तबाही और सैलाब की तबाही का निशाना बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।